printing. Go over here. Look, there are two scope of political science. There are two people, Beauty Roy and Aditya Pratap Singh. Beauty Roy के साथ कोई attachment नहीं है, no attachment. और आदित्य प्रताप की attachment है. If I click on this, I can see here, look, student name Aditya Pratap Singh, topic name scope of political science. This is how he has written. Okay. So I can download it from here, or I can check it over here and come out here. आपके इसके अंदर ऑप्शन होता है, जो आप असाइनमेंट को क्लिक करते हैं ना, उसी के अंदर होता है अटैचमेंट का आपको एक वी कॉल ऑप्शन. सो इफ यू डू नॉट गेट दी अपॉर्चुनिटी कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है गूगल डॉक्स में लिखने में, आप डिफरेंटली लिख के उसको यू कैन अटैच, आप उसको अटैच कर सकते हैं. ठीक है जी, इज इट क्लियर? सर असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है? अटैच कर देनी है बेटा, बस अटैच करके अपने आप सबमिट हो जाएंगे. आपको अभी तो दिखाया मैंने. ओके सर. ना वही अभी तो शुरू किया था, वही चीज़ तो दिखा रहा था. Have people here. He is absent today. Devin, Kavita, Pritesh, Anjali, Harpreet. What are the people there? Few people in the group. The woman, Jaspreet Singh. That will be back. Sagar, then Harman Queen, Aditi Singh, Nagraj, Okay, in the meantime, we will start a topic. And today's topic is Panchayati Raj. So slowly we are covering our syllabus. So that's the next topic. We have done up to how the central government is working, and now we have come up to that how do we work on how do we work on what do you call at the ground level, I can say this thing. Okay. So for this thing at the bottom level we have a Panchayati Raj, and how it works, let's discuss today. Panchayati Raj in India. They are saying in India, the Panchayati Raj generally refers to the local self-government of villages in rural India, as opposed
to urban and suburban municipalities. This system was introduced by a constitutional amendment in 1992. समझाने की कोशिश करें कि पंचायती राज जो है बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट का रूल है विलेजेस का, रूरल इंडिया का, गांव का, जहां पर वो स्वतंत्रता के साथ अपना जो गांव है, स्वायत्तता के साथ अपना जो गांव है वो चला सकते हैं। और ये नहीं है कि ये अपने आप से ये चीज़ कर रहे हैं, इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान की अमेंडमेंट है उसके अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि वो इस तरह से अपना जो गांव है उसका जो सिस्टम है उसको इस तरीके से रन कर सकते हैं। दैट इज़ somehow different from the urban areas, जो कि शहरी तरीके में जो म्यूनसिपैलिटीज़ काम करती हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। Although it is based upon the historical पंचायत सिस्टम ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कहते हैं कोई नया चीज़ नहीं है। हमारे समाज में जो पंचायती राज है बहुत पुराने से चला आ रहा है, बहुत, और इसी को ही आगे फॉलो किया गया है। The recommendation of the LM Singhvi committee was accepted. ये जो कमेटी थी LM सिंघवी जी की, इन्होंने they have recommended that the Indian government should support पंचायती राज। सो इस तरीके से उनकी जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के बाद ये सिस्टम लाया गया। The पंचायती राज system was formalized in 1992 following a study conducted by a number of Indian committees on various ways of implementing more decentralized administration. The modern Panchayati Raj and its Gram Panchayats are not to be confused with the extra constitutional Khap Panchayats. कह रहे हैं कि ये जो पंचायत हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत हैं, इनको पूरे तरीके से सरकार का समर्थन प्राप्त है। These are called as the decentralized administration of इंडियन गवर्नमेंट, एंड आप इनको जो खप पंचायत है उसके साथ कंपेयर या सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दोज खप पंचायत आर बेस्ड ऑन कास्ट पंचायत, जो कि हमारे कुछ हरियाणा जो कोई जो गाँव है उनमें इनका जो ज़्यादा बोलबाला माना जाता है। लेकिन इसको आप जो इंडियन गवर्नमेंट का ग्राम पंचायत का सिस्टम है उसके साथ कभी भी मिला के पेश नहीं कर सकते हो। In India, the Panchayati Raj now functions as a system of governance in which Gram Panchayats are the basic units of local administration. This system has 3 levels: Gram Panchayat, village level, जिसको मंडल परिषद या ब्लॉक समिति बोला जाता है, और पंचायत समिति जो भी बोला जाता है। इसके बाद है जिला परिषद, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोला जाता है। जो ब्लॉक लेवल पे काम करती है उसको ब्लॉक समिति बोलते हैं, जो जिला लेवल पे काम करती है उसको जिला परिषद कहा जाता है। It was formalized in 1992 by the 73rd Amendment to the Indian Constitution. Currently, the Panchayati Raj system exists in all states except Nagaland, Meghalaya, Mizoram and all union territories except Delhi. कह रहे हैं कि कई जगह पर जो है ये पूर्णतः लागू हो चुका है, completely it has been implemented, but there are places जहाँ पर इसको completely implement नहीं किया गया है। That is why they are saying कि कुछ इसमें states हैं जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम हो गई, और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं दिल्ली को छोड़कर जिनमें ये अभी पूरे तरीके से ये जो सिस्टम है इसको लागू नहीं किया गया है। पंचायत रिसीव फंड्स फ्रॉम 3 सोर्सेज। कहाँ से इनको फंड मिलता है? बेसिकली दे आर सेइंग इसको डिवाइड किया गया है। लोकल बॉडी ग्रांट्स एज रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। लोकल बॉडी जो हैं उनको जो है ग्रांट्स रिकमेंड करती हैं ग्राम पंचायत के लिए। यहाँ से इनका एक जिसको रिसोर्स है ऑफ द फाइनेंसेस। फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर की कोई स्कीम है जिसको जो है स्पॉन्सर किया गया है, उसके लिए जो फंड आता है, जैसे ग्राम पंचायत रोड्स बनाई जाती है, प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसके अंदर जो फंड है वो सेंटर से आता है। इस तरीके से जो फंड है इनको सेंटर से भी आते हैं। फंड्स रिलीज बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट भी इनको फंड देती है जो कि लोकल लेवल पे होता है। स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन अगर वो बोलता है उस लेवल पे भी इनको जो है फंड दिया जाता है। सो दीज आर द मेन बेसिक सोर्सेज ऑफ ग्राम पंचायत। अब इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। पंचायती राज ओरिजिनेटेड इन सेकंड मिलेनियम बीसी इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नया फंडा नहीं है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमें लगे कि ग्राम पंचायत समहाउ अ न्यू कंसेप्ट विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। दिस अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट, बहुत पुराने टाइम से वैदिक टाइम से चलता आ रहा है, और उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने ये जो कंसेप्ट है आज जो है इसको पूरे तरीके से बोला गया है कि इसको ग्राम पंचायत को फॉलो किया जाए। Mahatma Gandhi advocated Panchayati Raj as the foundation of India's political system.
as a decentralized form of government in which each village would be responsible for its own affairs. महात्मा गांधी जी ने भी इसको बहुत जोर शोर से बहुत बड़े तरीके से इसको सपोर्ट किया था कि पंचायती राज को इंडिया में लागू किया जाना है. He has advocated that, and he has said that it is the decentralized form of government and in which each village would be responsible. So again you can say that it was not the concept of today, it is the concept of older time as well as. So please what do you call try to understand it is not a newer concept. Okay. I think some problem is going on with the international shipping. Working is there. Yeah. It has generated. Okay. If you will join, please let me know. Message to you. Okay. Trying it with some communication. Uh, The term for such a vision was Gram Swaraj, village self-governance. Instead, India developed a highly centralized form of government. However, this has been moderated by the delegation of several administrative functions to the local level, empowering elected Gram Panchayats. कह रहे हैं कि India is a very big country. India is a very big country, and uh, sometimes it is hard to make control or provide the development at the ground level or at the local level. So what they are saying, they have said this thing that is why they have suggested that those powers should be delegated. ये जो powers हैं वो local level तक पहुंच जानी चाहिए ताकि जो उसका फायदा है वो सबको मिले. There are significant differences between the traditional Panchayati Raj system and envisaged by Gandhiji and the system formalized in India in 1992. कह रहे कि ग्राम पंचायत जो आज की डेट में वर्क कर रही है, it has difference. जो पुराने समय में काम कर रही थी, जो आज कर रही है और जो गांधी जी ने बोला था. But somehow, three of the concepts are quite closer because they were advocating the giving the powers to the local people or the gram panchayats so that they can work better for the villages. The Panchayati Raj system was first adopted by the state of Bihar by Bihar Panchayat Raj Act of 1947. कहते सबसे पहले जो पंचायती राज है वो एक्सेप्ट किया गया. That was in the Bihar by the Bihar Gram Panchayat. It was a continued legacy of local self-government started by Lord Ripon in British era. Later it was implemented by Rajasthan in Nagaur district on 2nd October 1959, but first started by Bihar. बाकी स्टेट्स ने इसको बाद में जो स्टार्ट किया, जैसे 1947 में बिहार पंचायत ने इसको लागू कर दिया था. और आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे ब्रिटिश इरा ही अभी चल रही थी. लॉर्ड रिपन जो ब्रिटिशर्स थे उनकी गवर्नमेंट के थ्रू ही, लोकल साइड गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज़ स्टार्ट की गई थी. आफ्टर दैट इट गोज टू राजस्थान एंड अदर स्टेट्स. Maharashtra was the ninth state. It also founded backing in the Indian Constitution with the 73rd Amendment in 1992 to accommodate the idea. तो जो महाराष्ट्र हैं वो नाइन्थ स्टेट थी जिन्होंने इसको अपने स्टेट में लागू किया ग्राम पंचायत को, और अमेंडमेंट के थ्रू दे समझे कि ये इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट है उसमें बोला गया, यस यू सपोज टू इम्प्लीमेंट द ग्राम पंचायत एट द लेवल. सो समझने की बात यह है कि एट सेंट्रल लेवल, एट स्टेट लेवल, okay, then we have union territories,
नाउ देयर इज अनदर सिस्टम विच इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम पंचायत सिस्टम। आज हम उस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत सिस्टम। The history of Panchayati Raj in India on 24th April 1993, the Constitutional 73rd Amendment Act 1992 came into force to provide constitutional status to the Panchayati Raj institutions। कह रहे हैं ये सारा टेक्निकल टर्म्स बताने की कोशिश क्यों की जा रही है? They are just trying to tell you that ये ग्राम पंचायत जो चल रही है, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है, these are totally लीगल, बिकॉज इनको जो पावर मिली है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। 73rd अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें ये बोला गया है एक्ट 1992 के अकॉर्डिंगली, यस पंचायती राज जो है वो पूरी तरीके से लीगल है और इसको पूरे तरीके से चलाया जाना चाहिए ग्राम पंचायत लेवल पे या गांव के लेवल पर। दिस अमेंडमेंट वाज एक्सटेंडेड टू पंचायत इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ 8 स्टेट्स। इसको ट्राइबल एरियाज तक भी बचाने की कोशिश की गई है जहाँ पे ट्राइब्स काम कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान। बिगिनिंग ऑन 24 December 1996, दिस अमेंडमेंट कंटेन्स प्रोविजन फॉर डीवैल्यूएशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज टू द पंचायत्स। क्या प्रोविजन दे रही हैं? जो पावर्स हैं वो नीचे नीचे आगे बांटती जाएं, बोथ फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स एंड सोशल जस्टिस। दो काम के लिए मेनली कि जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो गाँव की उस लेवल तक अच्छे से हो जाए और लोगों को सामाजिक न्याय मिले, सोशल जस्टिस मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, एज वेल एज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन रिलेशन टू 29 सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ 29 और चीज़ों के बारे में बात की गई है, 29 सब्जेक्ट्स। It has been listed in the 11th schedule of the constitution that the work should be done on these things, and the ability to levy and collect appropriate taxes, और जो वहाँ पर टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए जाएँ, लगाए जाए और उनकी कलेक्शन की जाए। ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस जो है उस लेवल पर अगर रहें तो कलेक्ट की जाए। The Act aims to provide a three-tier system of Panchayati Raj for all states। इसको three-tier system बोल रहे हैं, किस तरह से? Having a population of over 2 million to hold panchayat elections regularly every 5 years, to provide seats reserved for scheduled caste, scheduled tribes and women, to appoint a state finance commission to make recommendation regarding the financial powers of the panchayats and to constitute a district planning committee। करेंगे क्या पावर्स दे रहा है? वो पावर इतनी सारी दे रहा है कि इसमें लोगों को इलेक्शंस के थ्रू अपने लोगों को चुनने की आज़ादी दे रहा है, जैसे कि आप स्टेट और सेंट्रल लेवल पे देख रहे हो। 5 years के बीच में इलेक्शंस होने चाहिए, द सेम इट इज़, एंड इट हैज़ गॉट सीट्स रिजर्व, जिसमें जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या वुमेन हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जो सीट्स हैं वो मिले। ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोग ही इसके ऊपर काबिज होकर बैठ जाएँ। सो बहुत ज़्यादा वर्क इसके ऊपर किया गया है। Balwant Rai Mehta Committee. The Balwant Rai Mehta Committee, headed by MP Balwant Rai Mehta, was committee appointed by the Government of India in January 1957 to examine the work of Community Development Program and the National Essential Services 1953। कहते हैं कि ये कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय कमेटी इसका नाम रखा गया क्योंकि इसका नाम जो हेड थे वो एमपी बलवंत राय मेहता जी थे, और काम इनका क्या था? डेवलपमेंट देखना at level of ग्राम पंचायत एंड नेशनल एसेंशियल सर्विसेज, टू सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव देयर वर्क, ताकि वो सजेशंस दे सकें कि इनके जो काम है उसको और इसमें अच्छे तरीके से जो इम्प्रूवमेंट है कैसे लाई जा सके। The committee's recommendation was implemented by NDC in January 1958 and it this set the stage for the launching of Panchayati Raj institution throughout the country। कहते हैं इसके कारण, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के कारण ही जो पंचायती राज है पूरे देश में इसको लागू किया गया। The committee recommended the establishment of scheme of democratic decentralization which finally come to known as Panchayati Raj। कहते हैं इसको पहले नाम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का दिया गया, लेकिन धीरे धीरे जो एक्चुअली इसका नाम है पंचायती राज, उस पर बात आई। दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 टायर इस तरह से बन रहे हैं, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद, 3 लेवल पर जो है ये सिस्टम वर्क कर रहा है। अब पहला सिस्टम बता रहे हैं ग्राम पंचायत। सरपंच इज द इलेक्टेड हेड। इलेक्शंस होती हैं, पूरे तरीके से चुनाव होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोस इलेक्शंस सरपंच इज इलेक्टेड। The members of the Gram Panchayat are elected from each for a period of 5 years by the members of Gram Sabha। इसको 5 साल के लिए लोगों द्वारा चुना जाता है और
बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। तो ये पूरी जो ग्राम सभा होती है इसके अंदर, जिसको हम ग्राम पंचायत भी बोल रहे हैं, उसके अंदर इलेक्शन से चुना जाता है। उसके बाद वो अपना हेड चुनते हैं जिसको हम सरपंच बोला जाता है। सिमिलर इलाई अगर समझने की कोशिश करें, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे भी सरपंच और पंच होते हैं, और वही पंच जो है निर्णय लेते हैं कि कौन सरपंच यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम आगे भी पढ़ चुके हैं, कुछ और उन्होंने ऐड किए हैं इसके अंदर। देव सेड दैट कि कुछ लोकल लेवल के ऊपर जो मंदिर गुरुद्वारे या कुछ बने होते हैं, मार्केट्स, कई बार दुकानें वगैरह बनी होती है गाँव की, तो उसके जो रेंट आता है उसके बेसिस पे भी इनकी सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। बाकी सेम रहती हैं, और इसमें एक और ऐड हो रही है, दैट इज डोनेशंस। कुछ लोग जो गांव से तरक्की करके ऊपर पोजीशन पहुंच गए हैं, फॉरेन चले गए हैं, वो भी कई बार गांव में आकर जो डोनेशंस देके जाते हैं अपने गांव को ऊंचा उठाने के लिए। सेकेंड लेवल आ गया ब्लॉक समिति लेवल। इसमें इलेक्टेड पंचायत प्रेसिडेंट इज कॉटम। ये नाम दे रहे हैं अलग अलग जगह पर, मैंने आपको बोला कोई मंडल बोल रहा है, कोई तालुका बोला है इसको, तो इसको हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम दे सकते हैं कि ब्लॉक समिति के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। पंचायत समिति या ब्लॉक समिति इज लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द तहसील लेवल। देखिए वो गांव था, अब तहसील लेवल पे ब्लॉक समिति आ जाती है। दिस बॉडी वर्क्स फॉर द विलेजर्स ऑफ द तहसील दैट टुगेदर आर कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट ब्लॉक। कुछ गाँव को इकट्ठा जोड़कर एक तहसील बनाई जाती है, और उस ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए जो काम किया जाता है वो ब्लॉक समिति के द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जस्ट एज द तहसील गोज बाय अदर नेम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहते हैं कि जैसे कि तहसील अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से जानी जाती है, कहीं पर इसको तालुका बोला जाता है, कहीं पर मंडल बोला जाता है। तो बेसिकली हम एक यूनानिमस टर्म लेके चलते हैं जिसको तहसील बोला जाता है। For example, it is known as Mandal Praja Parishad in Andhra Pradesh, Taluka Panchayat in Gujarat, in Karnataka, पंचायत समिति इन महाराष्ट्र। से अलग अलग नाम है जो ब्लॉक पंचायत ब्लॉक समिति के नाम से तो अलग अलग जगह पर इसको बोला जाता है। तो सी एट अ ग्राम लेवल वी कैन सी देयर इज ग्राम पंचायत, देन वी हैव अ ब्लॉक समिति, देन वी हैव द जिला परिषद। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लॉक समिति। Members in the block panchayat is mostly ex-official. It is composed of all of the सरपंच। ये बता रहे हैं क्या क्या होते हैं ब्लॉक समिति। कहते हैं सारे गांव के जो सरपंच हो गए जो के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। एमपी होते हैं उस एरिया का, एमएलएज होते हैं उस एरिया के, एसडी होता है सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर भी कई जगह पर बोला जाता है, ये होते हैं। कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एससी एसटी और वुमेन एसोसिएशन के, एसोसिएट मेंबर्स, फार्मर फ्रॉम दैट एरिया, वो भी इसमें जिसको बोलते हैं बॉडी के मेंबर होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा भी चुनकर कोई ना कोई नुमाइंदा यहाँ पर भेजा जाता है। तो ये सभी को मिलाकर दे सकेंगे हम जो है ब्लॉक समिति की बात करते हैं। ये अपने तालुका की वेलफेयर के लिए काम करता है, अपने ब्लॉक की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल जो डिजिटल डेवलपमेंट है उसकी बात करते हैं, वाटर सप्लाई की बात करते हैं, साफ जिसको सुथरा वाटर सैनिटेशन की बात की जाती है, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब कामों की मुख्यतः रूप से बात की जाती है। सो ताकि एट तहसील लेवल जो है डेवलपमेंट वो अच्छे से हो सके। एंड देयर इज ऑफिसर फॉर एवरी डिपार्टमेंट, अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको बीडीओ बोला जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है समिति का, और चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क टू सीईओ ऑफ द जिला परिषद। वो कह रहे हैं कि वो जो सीईओ होते हैं जिला परिषद के, उसके आगे रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। फंक्शंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनके मुख्य काम है, क्या करवाना है। जो भी स्कीम्स बोली गई हैं सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के उसको लागू करवाना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट करना उस लेवल पर। सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ रोड्स, मैंने भी आपको बोला है कि सैनिटेशन, अच्छा साफ सुथरा पानी, ड्रेनेज, इन सब की जो व्यवस्था करना। डेवलपमेंट ऑफ अ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनकी डेवलपमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करना इस तरफ आने के लिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और किसी तरीके की जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है तो उन यूथ को इन्वॉल्व करना ताकि देश की डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ये सारे फंक्शंस में आता है ब्लॉक समिति। जिला परिषद अभी क्या है? जैसे इन द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्निंग ऑफ एडवांस सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कॉल्ड एज जिला परिषद। द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज IAS ऑफिसर,
एंड द चीफ ऑफिसर ऑफ पंचायती राज फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये पंचायती राज जो टोटल सिस्टम है उसका जो हेड है जो इसके अंदर ये चलाया जा रहा है, तो उसका चीफ ऑफिसर जो होता है वो IAS ऑफिसर होता है। ये DC होते हैं बेसिकली, जो डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोले जाते हैं कमिश्नर बोला जाता है, वही इसके हेड इनको बनाया जाता है IAS ऑफिसर को। इसके अंदर ये सारा काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनके दफ्तरों में बहुत ज़्यादा जो सरपंच हैं कहीं ना कहीं पहुँचे रहते हैं, जिला समिति के सॉरी ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स हैं वो इनके ऑफिस में अपना काम करवाने के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स बताने के लिए, शेयर करने के लिए आते हैं। इनकी कंपोजिशन क्या है जिला परिषद की, वो करेंगे। इसके जो मेंबर्स हैं वेरी करते हैं 40 से 60 में डिपेंड्स। डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको पहले बोल दिया कि DC जो हैं इसके हेड होते हैं, तो वो एक मेंबर तो रहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पंचायत समिटीज़, तो जो प्रेसिडेंट हैं ब्लॉक समिति के वो इसमें आ जाते हैं। हेड्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट का उसके जो हेड्स हैं वो उसके मेंबर होते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसके अपने आप से आ जाते हैं, और MLAs और MPs में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, SC/ST कैटेगरी से जो नुमाइंदे वो हो गए, वुमन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें आ गई। और इसके अलावा कुछ जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है या उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की हुई है इन दैट पब्लिक सर्विस एरिया, तो उनको ही इसके अंदर नुमाइंदा बनाया जाता है, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो शहर की भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर मिलकर काम कर सकें। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द रूरल पॉपुलेशन। ये ऊपर से नीचे की फ्लो कर रहा है। ये लोग हैं जो आगे जो ग्रांट्स और वो आगे फैसिलिटीज़ होती हैं इनको अप्रूव करवाने की कोशिश करते हैं। सप्लाई इम्प्रूव्ड सीड्स टू फार्मर्स एंड इन्फॉर्म देम न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, नए नए जो बीज आते रहते हैं खेती के लिए वो लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। जो इस लेवल पर स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज हैं रूरल एरिया पर, वो रन करने के लिए इनका काम होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज होगी विलेज लेवल पर। वैक्सीनेशन ड्राइव्स होती हैं एपिडेमिक्स के अगेंस्ट, वो कराई जाती हैं। कोई भी जो प्लान है SC और ST कैटेगरी के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए, कोई ऑर्फन किड्स के लिए, किसी तरीके का कोई काम है उसको प्लान्स को एग्जीक्यूट करना इनका काम आ जाता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इंकरेज करना कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई जाएँ ताकि डेवलपमेंट अच्छे से अच्छे हो सके। कुछ जगह पर ब्रिजेस की ज़रूरत है तो ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना, सड़कें बनवाना, पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरतों को पूरा करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सैनिटेशन से रिलेटेड इशूज़, ये सारा जो काम है ज़िला परिषद के अंदर आ जाता है। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। On August 27, 2009, the Union Cabinet of the Government of India approved 50% reservation women in पंचायती राज। कह रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है कि पंचायती राज में 50% 50% वुमेन की रिजर्वेशन होनी चाहिए। इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश, बिहार, फर्स्ट स्टेट बंगाल टू रिजर्व 50% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। सबसे पहले जो है वुमेन जो रिजर्वेशन है सबसे पहले अप्रूव किए हैं स्टेट्स बिहार और आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, ये सब नाम हैं जिन्होंने उसके बाद इस चीज़ को लागू किया है। वुमेन की रिजर्वेशन है 50%, इसको इंश्योर किया है। Majority of candidates in panchayats are women. In 2015, all the elected members in the Kodesri Panchayat in Kerala were women. जो बड़ी उपलब्धि थी केरला में, जो पंचायत थी उसमें सभी जो नुमाइंदे थे वो वुमेन थी, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है उसमें। System in practice. The panchayat throughout the years have relied on federal and state government and state grants to sustain themselves economically. The absence of mandatory elections for the panchayat council and infrequent meetings of the sarpanch have decreased the spread of information to villagers, leading to more state regulation. कह रहे हैं कि कुछ नेगेटिव बातें भी हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रांट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं कि उन्हीं की दया दृष्टि के ऊपर जो है ग्राम पंचायत चलती है, तो उससे थोड़ा काम गड़बड़ाया है। और जो इलेक्शन जो सरपंच हैं वो अपनी मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा उनको इन्वॉल्व किया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं जो विलेजेस तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, उतना अच्छे से नहीं है, leading to more state regulation. Many panchayats have been successful in achieving their goals through cooperation between different bodies and the political mobilization of previously unrepresented groups in India. लेकिन कई जगह पर बहुत अच्छा काम हुआ है, they are saying
जैसे हज़ारा एक गाँव है, आप उसमें इसकी देख भी सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी इसको डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है कि आप उसमें देख सकते हो कि उन्होंने गवर्नमेंट सॉरी ग्राम लेवल के ऊपर, अपने गांव लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा उन्होंने अपनी जो विलेज है उसको इस्टेब्लिश किया है। There is an obstacle of literacy that many panchayats face for engagement of village. Most development schemes being on paper. सबसे बड़ी रुकावट आ रही है वो लिटरेसी आ रही है, इसलिए गांव में स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत इंकरेज किया जाता है, क्योंकि जब हम बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर कोई स्कीम लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पेपर्स के ऊपर होती है, साइन करना, उसको पढ़ना, उसको समझना, तो उसके लिए लिटरेसी रेट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। Our homes linked to the Panchayati Raj systems have seen an increase in participation for local matters, लेकिन फिर भी लोगों ने लोकल मैटर्स के ऊपर पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया है। The reservation policy movement on the panchayat councils have also led to a substantial increase in female participation and have shaped the focus of development to include more domestic household issues. वुमन के इसके अंदर रिजर्वेशन होने के कारण इसका जो रूपरेखा है वो भी काफ़ी चेंज हुई है, क्योंकि पहले जो मैटर्स थे दोज वर सीन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ वुमन के आने से बहुत सारे हाउस होल्ड इशूज़ को भी अच्छे से देखा जाने लगा है और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आगे डिस्कस हुई हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे इशूज़ उनके जो सॉल्व हुए हैं वुमन के, तो उस तरीके से जो ग्राम पंचायत है वो काम कर रही है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, दैट वाज ऑन पंचायती राज, जिसमें हमने पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश की, व्हाट इज़ द सिस्टम एंड हाउ दैट सिस्टम वर्क्स, ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक समिति लेवल पे और ज़िला परिषद के लेवल पे। नाउ कम अप टू योर क्वेश्चंस लेवल। आप प्लीज़ अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछ सकते हैं। बिफोर दैट लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल द अटेंडेंस। हमारी जो अटेंडेंस है वो छूट जाती है, सो लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। So you can see over here every day without a miss मैं सभी बच्चों में अटेंडेंस कर रहा हूँ। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी और respond me on your roll call. Aditi Singh, Aditya Pratap Singh, Present, sir. Aditya Pratap Singh, Present, sir. Aditya Pratap Singh, Present, sir. attendance बोलो अपनी। Sir, present हूँ. आदित्य आवाज आ रही है मेरी बेटा? Sir, मैं present हूँ, sir. आदित्य, am I audible? Yes, sir. Aditya, am I audible to you? Yes, sir. बेटा चैट बॉक्स में लिखो am I audible? Excuse me, sir. ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, फाइन। आंसर कर लेते हैं। Excuse me, sir. आकाश, आकाश प्रेजेंट? Excuse me, sir. अंजलि रानी इज प्रेजेंट? Yes, sir. रानी इज प्रेजेंट।
Jyoti Kumari is present. Yes, sir. Kavita Mishra is present. Kush Kapoor. Raj is present. Raj. Sir, am I audible? Excuse me, sir. Kavita Mishra is present. Let me share the screen with you. If you feel anybody who is Excuse me, present, sir. I have not marked, please write down in the chat box. That is the present. Gupta is present. Anjali present. Beauty, Dhruv Singla, Gaganpreet is present. Harpreet is present. Kavita Mishra, Kush Kapoor, Sheenam Kapoor, these are present. Anyone else who is left can tell. Is that right? किसी की अटेंडेंस तो नहीं रह गई है? No, sir. Now, I think it has got some. Let me first of all stop that recording.